Assalamualaikum students, my name is Ishan Akbar. In this video lecture, we are going to discuss the lecture 8, which is about the soil compaction. This is the geotechnical engineering lecture series. So basically, the soil compaction is done to increase the soil strength, means we are going to improve the unit weight of the soil so we can compact the soil. The compaction and result will decrease the volume of the soil. If the volume of soil, let us suppose we have this volume of soil before compaction. So when we compact this, the volume of soil will be reduced like this one. So this will be new volume and this is the old volume. So new volume will be less than the old volume. So if we have a specific weight of soil and we divide it by the new volume, which is the reduced volume, so gamma will be increased. So basically, compaction is done to increase the unit weight of the soil. So by the increase in unit weight, the permeability of soil will be decreased. Chances of settlement will decrease because when we push or compact a soil, so its possibility in the future for compression will reduce because we have already compressed it by the application of loads, etc. So for this compaction determination, we have to determine that how much unit weight of the soil we get in the lab. For the determination, we need to know the unit weight that is maximum in the dry condition, and we want to determine this unit weight or maximum unit weight, maximum dry density in the lab. For the determination of this dry density, we need the standard Proctor test procedure. There are two test procedures. First one is the standard Proctor test, and next one is the modified Proctor test. So first, we will discuss about the standard Proctor test. We need different type of equipments like this cylinder, Proctor arrangement cylinder, 4-inch diameter इसका होता है cylinder का. Then we need the hammer, that is about 2.5 kg or 5.5 lbs. Then we need the brush, shovel, hammer. This is the rubber hammer and screw tightener, or you can sorry, this is a key, एक wrench type की चाहिए आपको. देन वी विल नीड दी स्पैचुला. देन वी विल नीड दी स्प्रे. ये लुब्रिकेंट होता है इसके अंदर, इसको हम स्प्रे करते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर ताकि आपकी जो सॉइल जब इसमें आप पोर कर लें, 3 लेयर्स में कंपैक्ट कर लें, तो उसके बाद इसको जब आप ओपन करेंगे तो सॉइल इजीली इससे सेपरेट हो जाए. Basically, these two methods are adopted for the standard Proctor test. ASTM D698 according to 2014 standards and AASHTO T99 according to 1982 AASHTO standards. So 4 inches diameter इस सिलेंडर का होता है जो प्रॉक्टर टेस्ट के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए. इसके ऊपर एक एक्सटेंशन यूज करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म फिल. कि आप ओरिजिनली आपका सैंपल यहाँ तक ही होता है, बट इसको हम प्रॉपर कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं. जब हम थर्ड लेयर इसमें फिल करेंगे तो उसकी कंपैक्शन में हमें फिर प्रॉब्लम्स होंगे और मटेरियल आपका जो है वो वहाँ से सेपरेट आउट होगा या यहाँ से निकलेगा. तो उससे बचने के लिए हम इस एक्सटेंशन को यूज करते हैं. इस एक्सटेंशन का जो डायामीटर है दैट इज दी 4.5 मीटर, 4.5 inches, sorry. And then we use a hammer. This hammer has a drop height of 12 inches. कि आप इस हैमर को लिफ्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ से जो ड्रॉप करेगा दिस विल बी 12 inches हाइट. एंड देन द वेट ऑफ द हैमर इज 2.5 kgs और 5.5 pounds. और यूनिट वेट के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं. आपने अगर इसके अंदर सॉइल का यूनिट वेट फाइंड करना है, वेट यूनिट वेट जिसको हम कहते हैं गामा डब्ल्यू, दैट इज नोन एज कि आपने सबसे पहले इस मोल्ड के अंदर सॉइल को लेयर्स फिल करनी है. इसमें लेयरिंग इस तरह से होती है. आपने एक लेयर फिल करनी है, लेयर 1, उसके ऊपर आपने 25 स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं. तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का प्रोसीजर यही होता है. इसके स्टैंडर्ड में ये इक्विपमेंट यूज होता है, ये सिलेंडर यूज होता है, ये हैमर यूज होता है. इस हैमर का जो वेट है 2.5 kgs एंड ड्रॉप हाइट इज 12 inches स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए. और 3 लेयर्स में आप सैंपल को फिल करते हैं, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3. लेयर 1 पे आप 25 स्ट्रोक्स लगाएंगे और यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स होंगे. यूनिफॉर्म मीन्स ये है कि अगर आपका ये इसका प्लान है तो इसमें आपके यहाँ पे स्ट्रोक्स, यहाँ पे हर बार जो आप स्ट्रोक लगाएंगे दैट शुड बी एट डिफरेंट लोकेशन. 25 स्ट्रोक आपने एक लेयर फिल करने के बाद इस सरफेस को देने हैं. 25 स्ट्रोक्स इन अ यूनिफॉर्म वे. जब आप
एक लेयर फिल कर चुके हो, देन इसी के ऊपर आप और मटेरियल फिल करेंगे इस जगह पे, लेयर टू। फिर आप इसी तरह से इसके ऊपर 25 स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, 25 स्ट्रोक्स लगाएंगे। जब ये 25 स्ट्रोक्स आप लगा चुके हो तो उसके बाद फिर आप इसमें लेयर थर्ड लेयर फिल करेंगे यहाँ पे। उसके ऊपर फिर आप इसी तरह से ये लेयर थोड़ी सी यहाँ तक आएगी जब आप इसको फिल कर रहे होंगे इस एक्सटेंशन के साथ। तो ये हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर इस तरह से बल्किंग हो के मटेरियल हो, तो उस बल्क मटेरियल को आपने यहाँ से स्पैचुला की मदद से साइड पे कर लेना है और ब्रश की मदद से इसको साफ कर लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसीजर कि जो आप सॉइल यूज़ करेंगे लेयर्स के लिए या प्रॉक्टर टेस्ट करने के लिए, आपने उसको मटेरियल को नंबर 4 सीव से पास करना है। नंबर 4 सीव से पास करने के बाद आप उसको पैन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आप उसको एक ट्रे में ले जाएंगे, उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड अमाउंट, जितना आप करना चाहते हैं फर्स्ट ट्रायल के अंदर। फिर आप उसकी लेयर्स फिल करना शुरू करेंगे जब थारोली मिक्सिंग के बाद। वो प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंबर 4 सीव है। इस नंबर 4 सीव से आप गुजारेंगे और इस पैन के अंदर मटेरियल को, यहाँ से मटेरियल सीव में जाएगा, यहाँ से आप इसकी हॉरिजॉन्टल शेकिंग करेंगे। उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर। अब ट्रांसफ़र करने से पहले आपने इसका वेट ले लेना है, वेट ऑफ पैन, दैट विल WP। तो यहाँ आप इस एम्प्टी पैन का वेट लेंगे, दैट विल बी नोन एज द WP। हियर इट इज़ 228.5 ग्राम्स। और फिर आप इसमें जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट आपको, आप 1000 ग्राम वेट यूज़ करना चाह रहे हैं सॉइल का, 2000 ग्राम यूज़ करना चाह रहे हैं, जितना भी चाह रहे हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अगर आप 1000 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका वेट होना चाहिए 1200 टू 8.5 ग्राम्स टोटल। तो उसमें आपका क्लियर वेट ऑफ सॉइल दैट विल बी 1000 ग्राम्स। एंड देन ये प्रोसीजर है। अब सबसे पहले आपका जो मोल्ड है, दिस इज नोन एज द मोल्ड। इस मोल्ड का आप वेट फाइंड करेंगे। हियर इट इज 4.1 kgs। दिस इज नोन एज द वेट ऑफ मोल्ड। ये वेट करने के बाद आप सीव लेंगे और सीव में से आप मटेरियल को पास करेंगे। दिस इज नंबर 4 सीव। ये नंबर 4 है। इस नंबर 4 सीव से आप मटेरियल को पास करेंगे, उसे सीविंग करेंगे। सीविंग करने के बाद जो मटेरियल इसमें से ये आपका एंड पैन है। इस पैन के अंदर जो मटेरियल होगा उसको आप शिफ्ट करेंगे इस पैन के अंदर और वेट कर लेंगे जितना आपको मटेरियल चाहिए। देन यू विल ट्रांसफर दिस मटेरियल टू द ट्रे। ये जो आपको ट्रे नज़र आ रही है, इस ट्रे में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने जितना अमाउंट फर्स्ट ट्रायल जो होती है आपने वाटर ऐड करना होता है, दैट इज़ 4 to 5%। you will add the 4 to 5% of water, but avoid the hand mixing। आप शॉवल्स को यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शॉवल्स आप मिक्स करेंगे। लेट अस सपोज आपकी फर्स्ट जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज 100 ग्राम। तो ये आपको बॉटल नज़र आ रही है, ये फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर आप 100 ग्राम वाटर को मेजर कर लेंगे या वेट कर लेंगे और उसको इक्वल इंटरवल्स पे डालेंगे। मतलब आप लेट अस सपोज 50 ग्राम वाटर पहले ऐड कर लेते हैं, उसको थारोली मिक्स कर लेते हैं, फिर दोबारा से 50 ग्राम ऐड करके मिक्स करते हैं। तो इस तरह का मिक्सचर आपका डेवलप हो जाएगा। जब ये मिक्सचर डेवलप हो जाए देन यू विल ट्रांसफर दिस मिक्सचर इनटू द मोल्ड। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तीन लेयर्स में फिल करेंगे। और पहली लेयर में जब फिल कर लेंगे तो आप इस हैमर की मदद से, दिस हैमर इज 2.5 kgs और 5.5 lbs, इससे आप स्ट्रोक्स लगाएंगे। जैसे बताया मैंने लास्ट पेज पे कि यूनिफॉर्म आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं, हर एरिया पे इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। जब ये 25 स्ट्रोक्स आप लगाएंगे ईच लेयर, 25 स्ट्रोक्स पर लेयर आपने लगा देने हैं। जब ये स्ट्रोक्स अप्लाई हो जाएंगे उसके बाद आपने तीन लेयर्स हैं, एक दो तीन कर लेंगे। तो उसके बाद आपने वो जो एक्सटेंशन है कॉलर इसके ऊपर था उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो सॉइल आपकी इस बाउंड्री से ऊपर है, दिस सॉइल इट विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। इस स्पैचुला को यूज करेंगे और आप एक्स्ट्रा सॉइल को रिमूव कर देंगे। जब वो सॉइल रिमूव हो जाएगी तो आप इसको क्लियर आउट करके, क्लीन आउट करके विद द हेल्प ऑफ ब्रश आप फिर इसका वेट करेंगे। अब स्टार्ट में आप जो वेट किया था वेट ऑफ मोल्ड, दिस इज द वेट ऑफ मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि इसमें मोल्ड भी है और सॉइल भी है। तो आपको तो सिर्फ सॉइल का वेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल। ये जहाँ जो हम मेजर करेंगे और माइनस उसमें से वो मोल्ड का वेट माइनस कर देंगे तो आपके पास वेट ऑफ वेट सॉइल आ जाएगा। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं वेट ऑफ वेट सॉइल। ये नोट डाउन कर लेंगे आप। ये आपको इसका वेट यूनिट वेट बता देगा सॉइल का। अब वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आपको पता है, ये जो मोल्ड हम यूज़ करते हैं इसका वॉल्यूम होता है 1/√π
30 फीट क्यूब एफपीएस सिस्टम में एंड 944 सेंटीमीटर क्यूब इन एसआई सिस्टम। तो आप सिंपली जो वेट यहाँ से सॉइल का आएगा डब्ल्यू एस, उसको डिवाइड करेंगे आप वी एम से, तो वी विल गेट gamma w, wet unit weight, that is the weight of soil in wet condition divided by volume of mold. In this way we will get the unit weight of wet soil. नेक्स्ट हम इसको सेपरेट करेंगे, मतलब आपका जो ये आपकी सरफेस स्मूथ थी, आपने वेट कर लिया, वेट करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे अपना मोल्ड को ओपन करके आपकी सॉइल जो है वो सेपरेट हो जाएगी। उसमें से आप विद द हेल्प ऑफ शॉवल सॉइल कुछ इसके सेंटर में से लेंगे, क्योंकि स्टॉप से हो सकता है उसका जो वाटर है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाए या इवेपोरेट हो जाए, स्पैचुला की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। बेसिकली यू विल गो, इसको ब्रेक करेंगे सैंपल को और इसके सेंटर में जाएंगे और सेंटर से इस तरह से सैंपल लेके इस आपकी जो पैन है इसके अंदर आप स्टोर कर लेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर अब इस पैन में डालने से पहले आपने इस पैन का एम्प्टी वेट करना है, और उसके बाद जैसे हमने मोल्ड का एम्प्टी वेट किया था और बाद में विद सॉइल वेट किया था, तो आपने वेट ऑफ एम्प्टी ये नोट कर लेना है, देन वेट ऑफ वेट प्लस कैन, एंड देन थर्ड नंबर पे फिर आप इस सैंपल को उठाएंगे और ओवन के अंदर रखेंगे फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इस टेम्परेचर पे इसको रखेंगे, आफ्टर 24 आवर्स आप उठाएंगे, तो फिर आप इस कैन का और सॉइल का ड्राई वेट लेंगे, उसमें कैन भी एडेड होगी और सॉइल भी एडेड होगी। तो इट मीन्स दैट वी हैव नोटिस्ड फॉर दिस कैन 3 वेट्स, वेट ऑफ एम्प्टी कैन या पैन कह दें इसको, देन वेट ऑफ पैन प्लस वेट सॉइल, तो मैं इसको W1 कह देता हूँ, इसको W2 कह देता हूँ। वेट फॉर अ मिनट प्लीज। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। W2 वेट है, यस देयर वाज अ चार्जिंग प्रॉब्लम, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो W1 वेट था आपका एम्प्टी पैन का, फिर आपने उसमें सॉइल ऐड की इस वाले स्टेप में, ये जो आपने सॉइल इसके अंदर ऐड की और इसका वेट लिया, दैट वाज W2, दैट इज लेट अस सपोज हियर इट इज 62.8। देन आप इसको ओवन में रखेंगे और 24 आवर्स के लिए 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट अप करेंगे। उसके बाद आप इसका वेट लेंगे, दैट विल बी W3, मीन पैन प्लस ड्राई सॉइल। जब ये आप वेट ले चुके होंगे, तो ये तीनों वेट से आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल चाहिए होगा। ये इसलिए करते हैं आप पैन के अंदर। तो मॉइस्चर कंटेंट सिंपली ये होता है कि वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। हम कैसे लेंगे, तो ये जो W2 है दिस इज पैन प्लस वेट सॉइल, और W3 पैन प्लस ड्राई सॉइल है। तो पैन प्लस वेट में से पैन और पैन प्लस ड्राई माइनस कर दें तो आपके पास वेट ऑफ वाटर आएगा, क्योंकि इसमें पैन पैन निकल जाएगा, सॉइल में से सॉइल, तो आपका सिर्फ वेट और ड्राई का डिफरेंस जो है वो वाटर होता है। तो means you will do the W2 minus W3 divided by what is weight of dry soil, that is dry plus pan minus pan. Dry plus pan is W3 and pan is W1. Simply we will do W3 minus W1 multiply by 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज ले सकते हैं
वाटर कंटेंट की किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर। तो इसी तरह से हम प्रॉक्टर टेस्ट 5 से 6 बार करते हैं। मीन यू विल मूव फ्रॉम दिस दिस देन फर्स्ट स्टेप हम फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। एक ट्रायल पूरा हो गया, अब आपने यहाँ से फिर मूव करना है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, और इस तरह से मूव करेंगे। देन यू विल मूव टुवर्ड्स दी वाटर कंटेंट। यहाँ तक दोबारा इसे रिपीट करेंगे, यूनिट वेट फाइंड कर लेंगे एवरी टाइम। आपको मॉइस्चर कंटेंट, तो दो चीज़ें आपको चाहिए बेसिकली, गैमा वेट एंड मॉइस्चर कंटेंट। जब ये आप कर चुके होंगे तो इससे आपने गैमा डी फाइंड करना होगा। तो गैमा डी कैसे फाइंड करते हैं? गैमा डी इज बेसिकली wet unit weight over 1 plus moisture content in percentage डिवाइड बाय 100। तो इससे आप ड्राई यूनिट वेट फाइंड कर लेते हैं सॉइल का। तो सिंपली यहाँ से आपके पास ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। तो हमें बेसिकली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, गैमा ड्राई एंड डब्ल्यू इन परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज एंड ड्राई डेंसिटी। तो हमारे पास आ चुकी हैं गैमा डी एंड डब्ल्यू। फिर आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आपके पास गैमा डी और डब्ल्यू आएगा, फिर रिपीट करेंगे, गैमा डी और डब्ल्यू आएगा, फिर रिपीट करेंगे। तो एटलीस्ट 5 ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने ये वाटर यूज़ करना है, जो हम वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं सैंपल के अंदर, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर ये वाला वाटर, तो ये कितना होना चाहिए, फर्स्ट ट्रायल कितनी हो? तो मोस्टली ये उसके लिए मैंने आपको बताया कि इसका क्राइटेरिया है कि आप 4 to 5% ऑफ द सॉइल वेट लें। अगर आपका सॉइल सैंपल 1000 ग्राम का है तो आप 4 to 5% का मतलब है 40 to 50 ग्राम आप वाटर ले लें। तो ये पहली ट्रायल हो सकती है। उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएं, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, इस तरह बढ़ाते जाएं। 5 to 6 ट्रायल्स आप लेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो नॉमिनल होंगे। उसके बाद अब ये इससे बेसिकली क्या हुआ, ये जो हमने सारा प्रोसीजर अपनाया इससे कंपैक्शन हुई है। तो कंपैक्शन इज बेसिकली, कंपैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो कंपैक्शन इज बेसिकली द डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि आपने सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज कर दी। वो मैंने बताया है कि यूनिट वेट या डेंसिटी है तो वेट ओवर वॉल्यूम है। तो जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो आपका गैमा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मीन आप डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सिंपली दिस इज द डेंसिफिकेशन प्रोसीजर विच विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, विच विल इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी, विच विल इंक्रीज द stability of the soil, and permeability and settlement of the soil will be reduced। ये आप यूनिट वेट फाइंड के लिए यूज करते हैं। वाटर कंटेंट का ये फार्मूला है, ड्राई डेंसिटी का ये फार्मूला है, और गैमा डी फाइंड करने का फार्मूला है फॉर फ्रॉम डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन अवेलेबल है तो उससे आप वाटर कंटेंट और यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है, इसका मैं यूजेज आपको आगे बताता हूँ स्लाइड पे। अब ये एक प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एटरबर्ग लिमिट्स अवेलेबल हैं तो आप किसी भी सॉइल के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं कि कितना होगा। तो उसके लिए बेसिकली आपके पास लिक्विड लिमिट LL और प्लास्टिक लिमिट PL अगर अवेलेबल है तो फिर आप इसमें से इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, लेट अस सपोज किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट 50 है और उसकी प्लास्टिक लिमिट 30 है, तो आप 30 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ 50 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये किस रीजन में, मतलब यहाँ पे कट करेंगे तो मीन आपकी सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो नियरली 22% होगा। अब ये सिर्फ रफ आइडिया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज 22%। इट मीन्स दैट आपकी जो कर्व बनेगी वो ड्राई डेंसिटी और उसमें वाटर कंटेंट में, वो पीक लेगी 22 के नियर अबाउट। मीन आगे 1% लेसर और मोर हो सकता है। तो आप पहली ट्रायल जो है वो 20% से पीछे लेंगे। मीन आपने जो पहला मॉइस्चर ऐड करना है वो आप 5% कर सकते हैं, दूसरा मॉइस्चर आप 10% करें, तीसरा आप 15% करें, फोर्थ वन आप 20 कर लें, देन 25 कर लें, एंड देन 30 कर लें। तो 6 ट्रायल्स पे आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी नियरली अबाउट टू 22। मीन दिस मे बी 21, दिस मे बी 20, दिस मे बी 18, 19 और 24, कुछ भी हो सकता है, बट दैट विल बी क्लोज टू 22। अब इसी तरह अगर आपकी किसी सॉइल का जो लिक्विड लिमिट है दैट इज 30 और प्लास्टिक लिमिट 20 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 15 के पास आ रहा है। मीन आपकी पहली ट्रायल 15% से लेस होनी चाहिए। मीन पहली बार जो वाटर, फर्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूड करेंगे दैट में बी 10%, दैट में बी 5%, 15 से लेसर हो। मीन आपका जो OMC है इस सॉइल के लिए दैट विल बी नियरली इक्वल टू 15%।
So this chart may help you to find out the nominal value of optimum moisture content that may be observed at the end of the Proctor test. तो सिंपली कंपैक्शन एफर्ट अगर हम कैलकुलेट करें इसके अंदर, तो सिंपल है ये कि आप ई फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर। तो हम कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगाते थे? 25। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी थी? 3। एंड वेट ऑफ हैमर कितना है? दैट इज 5.5 एलबीज मल्टीप्लाई बाय दी हाइट ऑफ ड्रॉप कितनी है? दैट इज 1 फीट, दिस इज एलबीज, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है? दैट इज 1/30 फीट क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, दिस कम्स टू बी 12,375 LB fit per fit cube. Mean you required a force of 12,375 lbs per foot of soil for a unit volume. Means we can say that the total compaction effort that we will apply on a 1 foot cube of the soil is known as the 12,375 for a 1 foot height of fall. So this is the compaction effort for standard Proctor test. अब लाइन ऑफ ऑप्टिमम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब लेट अस सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं फर्स्ट करता हूँ यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस पर आपने देखा कि आप 15 नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड कर रहे थे हर लेयर को, अगले पे आपने 20 किया, फिर 30 किया, फिर 50 कर दिया। तो ब्लोज बढ़ने के साथ साथ आपका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस होता जाता है। मीन कम मॉइस्चर कंटेंट पे आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होती जाती है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। ड्राई डेंसिटी, ये ड्राई यूनिट वेट ड्राई डेंसिटी होती है और ये मॉइस्चर कंटेंट का एक्सेस होता है। तो जब आप ड्रॉ करते हैं ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज को, तो इस तरह के ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, ये कर्व है। तो इन कर्व पे जो पीक पॉइंट है ना, दिस इज नोन एज दी OMC पॉइंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पॉइंट है, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पॉइंट है यहाँ से। इसका ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पॉइंट है, ये वाला। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम्स को टच करती है कि एक नंबर ऑफ ब्लोज 15 पे, 20 पे, 30 पे, 50 पे, वो इस तरह की होगी कोई कर्व। तो ये जो लाइन है जो इन ऑप्टिमम पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ ऑप्टिमम। अ लाइन विच इज coinciding, which is joining the points of optimum moisture is known as the line of optimum। कि आपकी ये कर्व थी, ये कर्व थी और ये कर्व थी, तो इनका ऑप्टिमम पॉइंट ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो आप एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देती है। दिस लाइन joining the points of optimum moisture content is known as the line of optimum। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ ऑप्टिमम का। अगर आप इसको फिगर में देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपको डैश लाइन नजर आ रही है, लाइन ऑफ ऑप्टिमम। इसी तरह से एक और चीज़ है, दैट इज अ जीरो एयर वॉइड कर्व और जीरो एयर वॉइड लाइन। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए ZAV। इसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल चाहिए होती है, बाकी ये वेट यूनिट वेट और मॉइस्चर कंटेंट आपको पता होता है। तो इसमें इसका करेक्टर नहीं है, ये तो आप ड्रॉ कर लेंगे गैमा D और W को यूज करते हुए, बट फॉर ड्राइंग द जीरो एयर वॉइड कर्व यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दिस फॉर्मूला 1/GS। तो इसके लिए आप जीएस अगर आपको नोन है या आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया जीएस फाइंड करने के लिए उस सॉइल का, तो फिर आप जीरो एयर वॉइड लाइन ड्रा करेंगे। ये वो लाइन है जहां पे आपकी सॉइल की सेचुरेशन इज एस एंड इट इज 100%। मीन आपकी सॉइल जो है वो 100% सेचुरेटेड है। मीन देयर आर नो एयर वॉइड्स, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लाइन इज जीरो एयर वॉइड कर्व और जीरो एयर वॉइड लाइन। तो कोई भी सॉइल इसका 95% अचीव कर सकती है, बट कैन नॉट अचीव द 100%। ऑन साइट आप 95% ऑफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं, बट इन द लैब यू कैन नॉट गेट जीरो एयर वॉइड कर्व एज वेल। ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन है, दिस इज एन आइडियल केस दैट कैन बी प्रिडिक्टेड बट कैन नॉट बी अचीव्ड। ये सिर्फ आइडियल है, इसको प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं आप, लेकिन इसको अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह से मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें सिर्फ चेंजेस हैं थोड़ी सी। उसमें ड्रॉप हाइट जो है आपके हैमर की, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर दिस वाज 12 inches, but now it is 18 inches, mean this is 1.5 feet। और हैमर का जो वेट था दैट वाज 2.5 kg, but here it is 4.54 kg। और in standard proctor test it was 5.5 lbs, but here it is 10 lbs। तो हैमर की दो करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आई है।
डायामीटर सेम है, बस उसके वेट में और उसकी ड्रॉप हाइट में चेंज आई है। और तीसरी जो चेंज है पूरे प्रोसीजर के अंदर, दैट इज द नंबर ऑफ लेयर्स। पहले आप 3 लेयर्स में फिल करते थे सॉइल को, बट इन केस ऑफ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यू हैव टू फिल द सॉइल इन 5 नंबर ऑफ लेयर्स। मीन आपका जो यूनिट वेट है दैट विल बी इंक्रीज्ड। मीन आप उस पर कंपैक्शन एफर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सिंपली अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ ब्लोज वही है, 25 ही रहेंगे। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होगी, 5। वेट ऑफ हैमर कितना है, 10 lbs, टाइम्स हाइट ऑफ फॉल कितनी है, 1.5 फीट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है। द सेम मोल्ड ऑफ 4 inches इज यूज्ड फॉर प्रॉक्टर, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर्स। प्रॉक्टर मोल्ड वही होता है 4 इंचेस का, जिसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1/30। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स नियरली 56,000 lb पर फिट क्यूब। तो यहाँ पे आप देखें कंपैक्शन एफर्ट, लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स को और एनर्जी को बढ़ाने और आपकी वेट, तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पे मॉडिफाई की हैं। तो यही 3 चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में, उस स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के केस में दिस 5 was 3 के नंबर ऑफ लेयर्स 3 थी, आपका weight of hammer was 5.5 lbs and your drop height was 1 feet. But in case of modified Proctor test, these are 5, 10 and 1.5. For this case, our increased effort is 56,000 lb per feet cube. So this is a better test for good results in the lab. तो आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ये एग्जांपल इंक्लूडेड है इसमें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपने इसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है। आपको वेट ऑफ द मोल्ड सॉइल गिवन है मोल्ड के अंदर, जो हम वेट ऑफ वेट सॉइल जिसको कहते हैं, मीन सिंपली दिस इज वेट ऑफ वेट सॉइल एंड दिस इज द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज। तो इसको यूज करते हुए आपने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है। तो सिंपली सबसे पहला काम है, इसी टेबल को यूज करेंगे और वेट डेंसिटी फाइंड करेंगे। वेट डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज इक्वल टू weight of the wet soil divided by volume of mold. तो देखें लास्ट पेज पे, this is the weight of wet soil and volume of mold. We know about the volume of the mold, that Vm is equal to 1/30 feet cube. We'll use this volume to calculate the gamma W. This is gamma W. So gamma W will be equal to weight of wet soil divided by volume of mold. For let us suppose for this third sample, we are going to determine the gamma W. So weight of wet soil is equal to 4.14 lbs divided by volume of mold is 1/30. So this 30 will be multiplied here, it will be 124.2 lb per feet cube, because this weight is in lbs and this volume is in feet cube. So this is our wet unit weight or wet density of the soil. अब इस वेट डेंसिटी को यूज करते हुए आप फाइंड करेंगे ड्राई डेंसिटी। ये फार्मूला हमने देखा है, वेट डेंसिटी डिवाइड बाय 1 + W/100। तो ये आपका फार्मूला है। उसी थर्ड सैंपल के लिए अगर हम जाएं गैमा डी फाइंड करने, तो ये क्या होगा, गैमा वेट डिवाइड बाय 1 + W/100। सो व्हाट इज गैमा W फॉर थर्ड सैंपल, दैट इज 120। दिस इज गैमा W 124.2 divided by 1 plus what is unit water content for this soil, this is 14/100. So for this we will calculate 108.95. So simply we can say that this is 124 by 1.18. So gamma D will be equal to 108.95 lb per feet cube. अब देखें हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है जिसको हम W कह रहे हैं, और हमारे पास ड्राई डेंसिटी अवेलेबल है। तो हम इन दोनों को, आप मॉइस्चर कंटेंट को रखेंगे एक्स एक्सिस पे परसेंटेज में, और ड्राई डेंसिटी को रखेंगे वाई एक्सिस में LB पर फिट क्यूब में। इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ दैट मीन these two values, moisture content W and dry density gamma D। तो आप इस तरह का ग्राफ अचीव करेंगे। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्योंकि आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट मॉइस्चर कंटेंट था। ए पॉइंट इसको कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, इसको डी कह लें, ई है और ये एफ है, ये 1 2 3 4 5 कह लें, जो भी कह लें। ये ए,
बी सी डी ई एंड एफ। तो जब आप ये कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पीक पॉइंट देखना है। अकॉर्डिंग टू मी दिस पॉइंट इज द पीक पॉइंट, this point. I will draw a vertical line from this point to the horizontal axis. It is cutting this at this point. This value is noted to be 14.4%. And in the same way, I will draw a horizontal line from this point to the vertical axis, and this comes to be nearly 109 lb per feet cube. तो रिजल्ट्स को मेंशन करना है। आई विल से दैट gamma d max, maximum dry density, this is known as the MDD, this is equal to 109 lb per foot cube. And optimum moisture content, this is not the maximum or minimum moisture, this is optimum, mean this is a moisture content at which the unit weight of the soil, dry unit weight of the soil is maximum according to Proctor or modified Proctor test. This will be normally equal to, this is here, this is 14.4%. You can change the values and you can change the results according to those values for your practice. Thank you very much. Take care. See you in the next video with a new topic.